Good morning student. Today I am going to tell you about theorem 10.3 from chapter circle. So let's see the theorem 10.3 and 10.4. So the theorem 10.3 is the perpendicular from the center of circle to the card bisect the card. Means कि अगर कोई सर्कल है और उसमें कोई कार्ड ए बी है, ए बी कोई कार्ड है और उस पर कोई परपेंडिकुलर अगर हम ओ एम ड्रा करें तो हमें ये बताना है, हमें ये प्रूव करके बताना है कि ओ एम बाइसेक्ट ए बी को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब हम इसको चलते हैं प्रूव करते हैं। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दिया गया है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इट मीन्स हम प्रूफ ऐसे कि कैसे इसको करेंगे, इन सर्कल अगर इसका हम नेम दे दें C1, इन सर्कल C1 whose center O and radius R, taking two triangles, in triangle OMA and triangle OMB. So what is given here? Given that OM is perpendicular on AB, this implies that we got angle OMA is equal to angle OMB, and OM is equal to OM. Why? It is the common in both triangle, and OM is equal to OMB. Why? Because both are equal to 90 degree, right? And OA is equal to OB. Why? Because radii of the circle, ये हो गया रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो अब आप ध्यान से देखिए, अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि OM is the common side and OA and OB is the hypotenuse of both triangle. Triangle first and triangle second are equal. तो आप यहाँ से कह सकते हैं by RHS congruence rule. Congruence rule, triangle OMA is congruent to triangle OMB. This implies that what you have to find after showing both triangles are congruent. So we got AM is equal to MB. Why? By CPCT. CPCT. What is the full form of CPCT? Corresponding part of congruent triangle. So AM is equal to MB. Both are corresponding parts of congruent triangle. So also we can say that M is midpoint of AB, and also we can say that OM bisect AB. हमें जो प्रूव करना था हमने यहाँ पर प्रूव किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कार्ड है और उसको उस पर कोई परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर से अगर हम उस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट, लेट्स सी द थ्योरम नंबर 10.4. So the theorem 10.4 is the line drawn through the center of a circle to bisect a card is perpendicular to the card. Just converse of the theorem 10.3.
मीन्स कि अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रा की जाती है तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है, और अगर बाइसेक्ट करता है तो क्या वो जो लाइन है वो कार्ड पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हमको शो करना है। तो हाउ वी प्रूव इट, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, टेकिंग ट्राइंगल ओ एम ए एंड ओ एम बी। तो इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड triangle OMB, what is given here? Given that OA is equal to OB. Why? It is the radius, आप कह सकते हैं रेडियाई ऑफ द सर्कल, एंड OM is equal to OM, OM is equal to OM हो गया। Why? Because common in both triangle, and also given that AM is equal to MB, because OM bisect AB, right? So this implies that also we can say that by SS congruence rule, triangle OMA is congruent to triangle OMB. This implies that angle OMA is equal to angle OMB by CPCT. CPCT, corresponding part of congruent triangle. But AMB, angle AMB is equal to 180 degree. This implies that also we can say that angle OMA plus angle OMB is equal to 180 degree. अगर इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बना दें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम equation first and second we get what? Two angle OMA is equal to twice of angle OMB is equal to 180 degree. This implies that angle OMA is equal to angle OMB that is equal to 90 degree. तो हमें ये प्रूव करना था, हमको ये प्रूव करना था कि एंगल OMA is equal to angle OMB is equal to 90 degree. It means this line OM is perpendicular on AB. तो हम कह सकते हैं कि जो OM है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दिस इंप्लाइज दैट OM परपेंडिकुलर ऑन AB, राइट, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो आई विल टेक हियर सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम 10.3 एंड 10.4. लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। So student, this example is the from exercise 10.1. Suppose you are given a circle, give a construction to find its center. Student, यहाँ पर हमने 2 सर्कल्स बनाए हैं। इस 2 सर्कल्स में हमें ये दिखाना था जैसे अगर कोई सर्कल ऐसे गिवन है, इस सर्कल में हम सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, हाउ वी फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं कैसे हैं, पहले हम सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक सर्कल बनाते हैं एनी रेडियस पर, और इस सर्कल के बाउंड्री पर हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट P, Q एंड पॉइंट R।
3 पॉइंट्स लिए और ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। पहले P को Q से ज्वाइन करते हैं और Q को R से ज्वाइन कर देते हैं। अब ज्वाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बनाना ही जानते हैं, कैसे बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, कंपास लेते हैं, कंपास में जो नुकीला सिरा होता है इसका यहाँ पर P पर रखते हैं और जो पेंसिल का एंड पॉइंट होता है ये इसके जो PQ का डिस्टेंस है उसके हाफ से अधिक ले करके हम यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं और एक आर्क यहाँ पर लगाते हैं। जस्ट ऐसे हम पॉइंट चेंज कर देते हैं, पॉइंट P से फिर ऐसे Q पर एक आर्क लगाते हैं, फिर ऐसे यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं। सिमिलरली फॉर द लाइन सेगमेंट QR के लिए भी हम यही सिस्टम करते हैं कि QR के डिस्टेंस से अधिक, QR के डिस्टेंस से आधे से अधिक डिस्टेंस हम ले करके यहाँ पर आर्क लगा करके 2 पॉइंट बनाते हैं और फिर इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे कि हमने यहाँ पर ये 2 सिचुएशंस दिखाए हैं सर्कल के। पहला C1, सर्कल C1 में हमने क्या किया, P एंड R एंड Q 3 पॉइंट्स हमने लिए सर्कल पर। फिर हमने क्या किया, PR पर एक परपेंडिकुलर बनाया। फिर ऐसे सिमिलरली इन द सेकेंड सिचुएशन हमने QR पर भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। अब क्या किए कि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम तब तक एक्सटेंड करते हैं इन द सर्कल कि जब तक वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, आप ध्यान से देखिए, यहां पर दोनों लाइंस क्या किए हैं, इंटरसेक्ट किए हैं, और जो ये इंटरसेक्ट किए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट यू कैन construct the circle and you can find the center of the circle by taking 3 points. Next example. Example number 2. So example number 2 is if 2 circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. मीन्स 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, मतलब कि हमने 2 सर्कल जब कंस्ट्रक्ट किया, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला पॉइंट P और दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q। फिर इसके बाद कह रहा है कि प्रूव दैट दे सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन chord। मतलब कि जो इनके सेंटर हैं, सेंटर O एंड सेंटर X, ये कहां पर लाई कर रहा है, जो ये कॉमन chord है उसको बाइसेक्ट करने वाले लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है। मीन्स OX इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। तो यहां पर हमको क्या प्रूव करना है, हमको यहां पर स्टूडेंट प्रूव करना है कि OX इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर ऑन PQ, and second things is angle PRO is equal to angle PRX is equal to angle QRO is equal to angle QRX that is equal to 90 डिग्री। अगर हम इसको शो कर दें तो इस क्वेश्चन का हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। How do we find the solution of this question? Let's see. Solution of this question is, firstly, we take triangle POX. Dear student, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जो गिवन पॉइंट्स हैं आप उसको नोट करेंगे। आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन जो भी है इस कंस्ट्रक्शन नोट करेंगे, इसमें जो कंस्ट्रक्शन करना है कंस्ट्रक्शन नोट करेंगे, और इसके बाद क्या प्रूफ करना है इसको नोट करेंगे। इसके बाद आप प्रूफ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रूफ बता रहे हैं। तो कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं ये आप ध्यान से देखिए।
In triangle POX and triangle QOX, OP is equal to OQ, that is the radii, and OXP is equal to XQ. It is also the radii of circle, that is the radii of C1, and this is the radii of circle C2. इसका प्रूफ दूसरे दिन. Dear student, note down the theorem and their proof, and also note down the solution of the example first, and you construct an circle whose center is you construct a circle whose radius is 5 centimeter, and also find the center of the circle.